الحال ابغى يفوز رهي ما في لك ميل وقلت لي سوري وانا فاشت احلى ما طيب فهمتني قلتي ده قرآن پاک سے کروں گا اور اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جاوید ارشاد بھائی کو کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم دین سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات صبا جھوم کر کہہ رہی ہے بات صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں تہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے ایک شاہین ہے اللہ پاک ان کو لمبی زندگی باندھ والی اور ان کی زندگی میں اللہ برکت دے۔ جس شخص کو دعوت دینا چاہتا ہوں سٹیج پہ ان کی زندگی بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے وہ پاکستان میں نہ ہونے کے باوجود بھی یہاں پہ ہمیشہ ہر پازیٹیو کام میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں ہمیں سمجھاتے ہیں ہمیں ساتھ لے کے چلتے ہیں تو میں دعوت دیتا ہوں شفیق بھائی کو کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور کچھ الفاظ بیان کریں۔ ان کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور باقی جتنی بھی عوام یہاں پہ کھڑی ہے یہ ہماری جو ٹرسٹ ہے یہ آپ لوگوں کے لیے ہے یہ آپ لوگوں کی ہے یہ ایک ٹیم نہیں ہے یہ پوری یونین کونسل کی ہے نہ کسی فرد واحد کی ہے نہ کسی قومیت کی ہے یہاں پہ الحمدللہ جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں ماشاءاللہ اس یونین کونسل سے تعلق رکھتے ہیں اور انشاءاللہ ہمارا سب سے پہلا مقصد ہی ہماری یونین کونسل کو ایک امن کا گہوارہ بنانا ہے عملی کام سے نعروں سے نہیں باتوں سے نہیں عملی کام سے اور اس کے لیے ہمیں آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے خالی باتوں سے بھی نہیں چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ آگے یہاں پہ تقریر کر کے چلے جائیں اس کے بعد ہمیں آپ کو سپورٹ کرنی چاہیے ادھر فرنٹ لائن پہ ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے ہمیں آ کے ادھر موٹیویٹ کرنا چاہیے کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ جو یہاں پہ گراؤنڈ ریئلٹی پہ ہے وہ ہمارے لیے قابل قدر ہوگی اور اس مشورے کو ہم لوگ
यकीन करें कि हम फ्रंट लाइन पर रख के चलेंगे, क्योंकि जो लोग आप लोग यहाँ पे देखते हैं ग्राउंड पे, मुझे तो तकरीबन अब्रॉड में ऑलमोस्ट 16 ईयर हो गए हैं, लेकिन मेरा हर दिन हर लम्हा मेरा अपने गांव के लिए, अपने यूनियन काउंसिल के लिए धड़कता है। क्यों कि मैंने जो यहाँ महरूमियाँ देखी है मेरे अपनी ज़ात के लिए, यकीन करें कि मुझे आज इंतहाई खुशी होती है, लेकिन मेरा दिल आंसू के अंदर से आंसू निकलते हैं। क्यों निकलते हैं कि मैंने यहाँ पे जो लोग देखे हैं पिसे हुए गरीब तबका, लेकिन उसके लिए मेरा दिल दुखता है आज भी। क्यों दुखता है कि हम लोग वहीं के वहाँ खड़े हैं, बाकी दूसरी यूनियन काउंसिल की मिसालें ले लें, वो कहाँ पे कहाँ चली गई हैं। क्यों गई हैं कि वो लोग इकट्ठे हैं, यकजा हैं। हम लोग ये छोटी सी यूनियन काउंसिल है, इसको इकट्ठा नहीं कर सकते। यहाँ हम लोग कौमियत बटे हुए हैं, इस कौमियत से निकलें, एक यकजा हो के इलाके के लिए, लोगों के लिए अच्छा सोचें, कोई पॉजिटिव काम करें, इज्तिमाई काम करें, जिनमें सब गरीब लोगों का भला हो। तो मैं दोबारा एक और भी नाम लेना चाहूँगा, नईम सिद्दीकी साहब का। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे फ़िल्टर प्लांट के लिए जगह दी। मैं उनका, वो जहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी मेरी तरफ से जो भी खिदमत होगी, जो भी मुझे रात 12 बजे भी कोई कॉल करेगा तो मैं उसके लिए, मेरी जान भी हाजिर है। ठीक है, आती है इनको। तो बाकी इंशाअल्लाह ताला जितने भी हमारी टाइगर फोर्स यहाँ पे मुजाहिद फोर्स है, जो इन्होंने काम किए हैं पिछले कुछ अरसे से, 5-6 महीने से वो लगे हुए हैं, मैं उनको यकीन करे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और बाकी खुरम भाई की खिदमत वो हमारे लिए लफ्ज़ों में बयान करने के नहीं है। जो उनकी कदर है वो इंशाअल्लाह ताला हमारे दिलों में रहेगी। जो उन्होंने काम यहाँ पे कर लिए हैं, जो उनकी सोच है, वो ये सोच नहीं है कि एक आदमी को सपोर्ट करना, वो ये सोच है कि ये पूरे इलाके को सपोर्ट करना, लेके चलना, यहाँ पे एक रोज़गार प्रोवाइड करना, ये उनकी सोच है। ये सोच नहीं है कि एक फ़र्द वाहिद को हमने प्रमोट करना है, ये ऊपर लेके जा रहे हैं, नहीं। उनकी सोच ये है, मेरा उनके साथ थोड़ा सा वक्त गुजरा है, लेकिन जो मैंने उनसे सीखा है, यकीन करें मैंने ऐसा शख्स आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मैं उनको अपने दोनों हाथों से सल्यूट करता हूँ। यकीन करें ये एक हीरे की कदर करना सीखो बस, ये एक हीरा इंसान है। मैं यहाँ पे काफ़ी अरसे से लगा हूँ, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा था, कोई प्लेटफार्म हमें नहीं मिल रहा था काम करने के लिए। वो प्लेटफार्म फ्राहम करना बड़ी चीज़ होती है, उस पर अमली काम करना वो बड़ी चीज़ होती है। लेकिन उसने जो किया है, ये हमारी नस्लों के लिए, आने वाले वक्तों के लिए इतना कुछ है कि हम लोग उसको अगर संभाल लें ना, तो यही हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन उसके लिए आप लोगों का फ्रंट लाइन पे आके हमारे साथ कंधे पे कंधा मिला के खड़ा होना, हमारे साथ चलना, पॉजिटिव चीज़ पे, नेगेटिव हमें उस पर हमें समझाना भी है। इधर मेरे टीचर भी बैठे हुए हैं, ठीक है, तो उनको भी हमें समझाना चाहिए। कोई हम गलती इंसान से होती है, जो गलत काम करें तो हमें समझाएं आके, ये नहीं है कि हमें क्रिटिसिज्म करें। हमारी इस्लाह भी करनी चाहिए आप लोगों को। कोई गलत काम कर रहे हैं, हमारी इधर फोर्स सारी, हमारे साथ मुबशिर भाई हैं, नना भाई हैं, वसीम भाई माशाल्लाह, उनका तो एक छोटी सी उम्र में ना एक हीरा एक इधर पैदा हुआ है, और उसने जो काम किए हैं माशाल्लाह, उसका तरबियत और उसकी सोच इलाके के लिए वो बहुत ही कीमती है। बाकी हमारे लिए सब के सब जितने भी यहाँ पे कोई भी अच्छा काम करेगा वो हमारे लिए काबिल एहतराम होगा। अच्छाई में हम सब के साथ हैं, हमारी ट्रस्ट अच्छाई में सब लोगों के साथ है, बुराई में हम किसी के साथ नहीं हैं। किसी बुरे काम में, किसी गलत इंसान के हम सपोर्ट नहीं करेंगे। कोई ऐसा काम हो रहा है, गलत हमसे हो रहा है, तो आप लोग आके हमें बताएं कि ये गलत काम आप लोग कर रहे हैं, उसकी इस्लाह हम लोग करेंगे, ठीक है। बाकी मैं एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम लोगों का। तो अल्लाह पाक सबको अमन, और अपने इस यूनियन काउंसिल के लिए दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक इसको एक अमन का गहवारा और एक खुशहाल, और कोई भी यहाँ पे गरीब ना रहे। ये हमारा मिशन है कि हर घर तक उसका हक, उसको चीज़ मिलनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको सलाम जी। भाई ने पहले भी इस इलाके के लिए काफ़ी कुर्बानियाँ दी हैं, तो अभी जहां हम लोग बैठे हैं, इसका 2 साल का किराया शफीक भाई ने अपनी जेब से अदा करने का वादा किया था, और 1 साल का अदा भी कर दिया। और इसी के साथ साथ
جو فلٹر والی جگہ ہے جہاں پہ جمعہان ویلفیئر فلٹر پلانٹ لگا ہوا ہے، اس کا کرایہ بھی شفیق بھائی نے سال کا ایڈوانس دے دیا تھا اور انشاءاللہ اگلے سال کا بھی دیں گے۔ اور ساتھ میں ایک اور اناؤنسمنٹ بھی کر رہا ہوں میں کہ جو فلٹر پلانٹ پہ پانی ہے وہ انشاءاللہ بالکل فلٹر ہوا پانی ہے، جراثیم سے پاک پانی ہے، اور یہ پانی ٹرسٹ کی طرف سے سب کے لیے مفت ہے، اس پہ کوئی کسی قسم کے چارجز نہیں ہے۔ تو سارے بازار میں بھی گھروں میں بھی یہ پانی لے کے جائیں، کیونکہ بہت سی بیماریوں کی جڑ پانی ہے، اور یہ پانی صاف ہے تو بہت سی بیماریاں اس سے دور ہوں گی۔ اب اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں نوجوانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ سپورٹ میں ان کا بہت بڑا نام ہے، دوسری ایکٹیویٹیز سے ہٹا کر سپورٹ پہ لگانے والے یہ فرد واحد ہیں جو ہر سال ٹورنامنٹ بھی کرواتے ہیں یہاں پہ، اور ہر ایک اچھے کام میں فلی سپورٹ بھی کرتے ہیں سب کو۔ تو میں دعوت دیتا ہوں رفاقت امیر صاحب کو کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور کچھ الفاظ بیان کریں۔ سارے کو اسے دی طرفوں دلی دعا نکل دیو نہ جگہ اللہ پاک تو سارے دی زندگی بھی برکت عطا فرماویں۔ اور میں دو چار ہی گلاں کرساں ٹرسٹ دے حوالے نال۔ اساں دے ٹرسٹ بنی ہے سرن ویدی میں سب سے پہلے نہ سونا ملے سان کے کھلیاری ہے، کسی شخص سونا جاتا سرن ویدی میں ایمبولے سان کے فری بھی نہیں کھلیا رکھی، ایتھے وزیر بھی گزرین، ایتھے بڑے بڑے سرمایہ لے لوگ بھی گزرین، بڑے بڑے تکڑے لوگ بھی گزرین، لیکن کسی سونا ایمبولے سان کے نہیں کھلیا رکھی، اتنی جرت خدا سنوں کو نہیں دیتی۔ اور یہ خرم خان کو اور اس ٹرسٹ کو خدا سوں اتنی احمد دیتی ہے کہ ایمبولینس آن کے کھلیاری آج پوری اصلی یونین کونسل اس کو استعمال کر دی ہے۔ اور دوسری گل فلٹر والا پانی ہے سو اسا دا پانی انتہائی ناقص پانی اسا جبوڑی دا، اور انہاں سے فلٹر والا پلانٹ لائے اسی ان دا انتہائی شکریہ ادا کر دیاں۔ آج سارے لوگ فری پورے پاکستان میں فری فلٹر پانی کسی جگہ دے بھی نہیں ملتا، صرف جبوڑی میں ملتا ہے، پورے پاکستان میں نہیں ملتا، میں تو سوچتا بھی نہ لاتا۔ اور اس بار جڑی یہ نہ سو قربانی اجتماعی کیتی ہے، 10 بڑا خیال ہے چوکرے نہ سو یا 8 بیس پہ غالباً میں بسرتا 10 یا 11 چوکرے نہ سو ذبح کیتے ہیں، اور انہاں دی پہلی دفعہ سی انہاں سو 8-10 گرام بے ہر کرب بے اچھے عزت نال جن لوگوں قربانی تو گوشت بالکل نہ تھاندا سا، ان دے کار انہاں دے نوجواناں سوں انہاں دے ٹرسٹ دیاں لڑکیاں سوں گڈی دے حوالے نال ایاں پیدل جل کے سارے دے گھر نال عزت نال گوشت دتے، اسی ان دا شکریہ ادا کردے ہاں۔ اور دوسری گل اے سستی روٹی، اس ویلے روٹی بہت مہنگی ہوئی دی ہے، اور سستی روٹی دے نہ سوچ افتتاح کیتے ہیں، اسی ان دے انتہائی مشکور ہاں اور ان دا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ان جگہ اسی راتی دیہڑی انشاءاللہ دعا گواں، اور اساں دی انہوں کو جس ویلے بھی ضرورت پئی انشاءاللہ راتی 12 بجے پئی 1 بجے پئی 2 بجے پئی اسی ان دے شانہ بشانہ ہو ساں، اسی ہر اچھے کمان نال ہر آدمی نال ہاں، اور برے کمان دے اسی سکتے پراؤ نال بھی نہ، اور ان دا سارے دا شکریہ ادا کرتے ہیں، دوستو شکریہ ادا کرتے ہیں جو تسی لوگ آئے ہو اساں نال تعامل کیتے ہیں، بہت بہت مہربانی، شکریہ، اللہ حافظ۔ میں دعوت دیتا ہوں ہزاروں نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے جن کو دیکھ کر انسانیت کا مطلب سمجھ آتا ہے کہ انسان کو دنیا میں کس لیے بھیجا ہے۔ ان کی بے لوث خدمت کو دیکھ کر ہم سب ان کے ساتھ جڑے، ان کے شانہ بشانہ رہے، کبھی بھی ہماری کسی بات کو نہیں ٹالا، ہر بات کو بہت اچھے سے سنا سمجھا، اسے پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا، اور وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو اسی طرح شاد و آباد رکھیں۔ تو آپ کی بھرپور تالیوں میں دعوت دیتا ہوں خرم بھائی کو کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور کچھ الفاظ بیان کریں۔ السلام علیکم۔ آج ذرا میں اردو میں آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں، اس کے لیے معذرت، کیونکہ کافی ساری ہینکوں کی وجہ سے میری مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے لوگوں کو۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے اور آپ لوگوں نے عزت بخشی ہم لوگوں کو۔ تو انشاءاللہ تعالی
ये जो सस्ती रोटी का जो सिलसिला है, ये सिर्फ मैं अकेला या ये सिर्फ ये टीम अकेली नहीं इसको चला सकती। इसके लिए आप सब लोगों को साथ देना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई आदमी अगर इस वक्त 10 रोटी लेता है 15 के, और आप लोगों ने इज्जत बख्शी हम लोगों को, तो इंशाल्लाह ताला ये जो सस्ती रोटी का जो सिलसिला है, ये सिर्फ मैं अकेला या ये सिर्फ ये टीम अकेली नहीं इसको चला सकती। इसके लिए आप सब लोगों को साथ देना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई आदमी अगर इस वक्त 10 रोटी लेता है 15 के हिसाब से, तो अगर हम उसको 10 रुपए के हिसाब से रोटी देते हैं तो उसको 5 रोटियां फ्री मिलती हैं। और अगर कोई होटल वाला हमारे साथ कोऑपरेट करता है, वो 500 रोटियां लेता है, तो उसको आप महीने की तकरीबन अगर 500 दिन की रोटी लेता है तो महीने की उसकी 15,000 रोटियां बनती हैं। 15,000 रोटी के हिसाब से उसका 75,000 रुपए का फर्क पड़ता है। अगर उसका 75,000 का फर्क पड़ता है तो उस होटल वालों से, इन सारे इलाके वालों से गुजारिश है वो अपने जो पड़ोसियों का ख्याल करे, वो अपने साथ लोगों का ख्याल करे, वो जो गरीब लोग हैं यहाँ पे उनकी थोड़ी सी फिक्र करे। किसी को खाना खिलाना, आप सब लोगों को सारे यहाँ पे मौजूद हमारे आलिम दीन भी सारे बैठे हुए हैं। बनी इसराइल की वो औरत का किस्सा याद होगा जिसने सिर्फ एक कुत्ते को एक मोजे से में पानी पिलाकर अल्लाह ताला ने उस बदकार औरत को बख्श दिया। तो हम लोग तो किसी को अगर खाना खिलाते हैं, किसी को एक नवाला या किसी को देते हैं, तो ये हमें जन्नत का रास्ता दिखाता है। हम ये इतनी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ों में काफ़ी खर्चा कर देते हैं, किसी इस चीज़ में, किसी उस चीज़ में, लेकिन हमारे पड़ोस में पड़ोसी भूखा रहता है। यहाँ पे ऐसे वाक़यात भी हुए हैं कि लोग यहाँ पे सारे लोग मौजूद हैं कि रात को बच्चों के रोने की आवाज़ आई है जो 3 दिन तक भूखे रहे, उनको भी नौजवानों ने, ये टीम बैठी है हमारी, इन्होंने जाके कोशिश की है उनको हेल्प करने की। इसीलिए सारे इलाके को चाहिए सारे मिलके हमारे साथ कोऑपरेट करें, इसीलिए ताकि हम इस चीज़ को और आगे कर सकें। और मैं तंदूर वाले जितने भाई हैं परेशान ना हो, इनके लिए भी हम इंशाल्लाह कुछ ना कुछ सिस्टम बनाएंगे। अगर उनको कोई परेशानी है तो हमसे आके मीटिंग करें, क्योंकि मैं तो बिल्कुल ही इसको था कि रोटी बिल्कुल हम लोग 5 रुपए की कर दें, लेकिन हमारे दूसरे भाइयों ने कहा कि नहीं, ये काफ़ी यहाँ पे रोज़गार ख़राब हो जाएगा, लोगों के तंदूरों में कोई प्रॉब्लम होगा या ये होगा, इस वजह से हमने इसको 10 रुपए का फिलहाल रखा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम सस्ता दस्तरखान भी करेंगे। आगे और भी ऑन गोइंग काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन ये आप लोगों को इसके लिए साथ देना बहुत ज़रूरी है। इलाके वालों पॉजिटिव तनकीद करें, लेकिन साथ दलील दें। अगर कोई तनकीद करता है, कोई हमारे में गलती है, उसके साथ दलील दें। ऐसी उठा के कोई ऐसी बात कर दे या वो कर दे, तो ये बच्चे छोटे छोटे जिन्होंने इस कुर्बानी के वक्त में इतना ज़बरदस्त काम किया, मेरी तो ज़िंदगी की ये पहली ईद थी यहाँ पे गाँव में, लेकिन इतनी ज़बरदस्त ईद, इतना मज़ा आया मुझे कि यकीन करें, मैं बोलता हूँ हर रोज़ में यहाँ पे आके इस तरह की ईद मनाऊँ। बहुत खुश हुई यहाँ लोगों का प्यार देख के, जितने लोग यहाँ पे रिस्पेक्ट करते हैं। आगे हमारे और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, ये कोई सिर्फ एक छोटा सा ये मेरी नज़र में काम है। तो इंशाल्लाह अगर आप लोगों का साथ रहा तो इंशाल्लाह तारीख इस गांव को याद रखेगी, इस इलाके को याद रखेगी। हम इस गांव को रोल मॉडल बनाएंगे, इस गांव को इंशाल्लाह रोल मॉडल बनाएंगे। हमारे यहाँ पे लोग बेरोजगार हैं, यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल तरीका होता है, मेरे बच्चे को बाहर लेके चले जाओ, बाहर ले जाके अरबियों का नौकर बना देते हैं। 1500-2000 उनकी सैलरी होती है, 1000 दरम उनका वैसे ही खर्चा आ जाता है। बेचारे यहाँ क्या भेजेंगे, कोई बीमारी आ जाए, कुछ हो जाए, वो फैसिलिटीज हम नौजवानों को यहीं पे देंगे। ये अल्लाह ताला ने हमको पिलर दिए हैं, ये सारी पिलर है, ये टूरिज्म का सिस्टम है यहाँ पे, अल्लाह ने हमको पिलर दिए हैं। बस थोड़ा सा स्मॉल इंडस्ट्री सिस्टम यहाँ पे शुरू हो गया, यहीं पे रोजगार सारों को मिलेगा इंशाल्लाह ताला। बट अच्छी से अच्छी सैलरी देंगे हम यहाँ पे नौजवानों को, सिर्फ स्किल्स लेके आए, हमें मशवरा दें, किसी के पास कोई चीज है हम उसके साथ इन्वेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। कोई बंदा आता है बोलता है मैं ये काम करना चाहता हूँ, हमें कायल करे उसके ऊपर, हम उसको साथ रखेंगे, साथ हमें बताए कि गांव की खिदमत वो किस तरह करेगा, हमारे नौजवानों को नौकरी किस तरह देगा, हम वो प्रोजेक्ट में उसके साथ पूरी हेल्प करेंगे जहां तक होगा। हम सारे इलाके की तरक्की के लिए इंशाल्लाह, ये अल्लाह ताला ने हमको एक पिलर दिया हुआ है, इसको करना है, हमने सिर्फ इसको मॉडिफाई करना है। 1-2 बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे आ गए, इस गाँव की तकदीर बदल जाएगी। इधर सारे लोगों को जितने भी यहाँ पे भाई हैं, सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। इसमें ना कोई कौमियत का अगर कोई बात करता है कि कोई मैं खान बहुत बड़ा खान हूँ, वो आके मुझसे बात करेगा वो कितना बड़ा खान है। किसी गरीब आदमी पे कोई किसी को दबाता है या किसी गरीब आदमी के साथ कोई जुल्म करता है, हम उसके साथ इंशाल्लाह खड़े होंगे सारी जायज चीजों में।
हम सारी इस सिस्टम के खिलाफ हम काम करेंगे। किसी कौम के ऊपर अगर कोई बात करता है कि यार ये कोई शफीक एक खोजा बरादरी से ही आदमी, इसने जितना हौसला मुझे दिया है किसी मेरे अपने ने इतना हौसला नहीं दिया जितना इसने वहां बैठ बैठ के मुझे बातें समझाई हैं। इसने गांव का सिस्टम मुझे समझाया कि यहाँ पे इस तरह की चीजें होती हैं। रोज आधा आधा घंटा बेचारा अपना काम छोड़ के मेरे पास आता रहा वहां पे, और इसने हमें फाइनेंशियली तौर पे भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया हर चीज में आगे शाना बचाना। दूसरी कौमियत का आदमी हो के उसने इतनी हेल्प की है, लेकिन कुछ यहाँ से हमारे भाइयों ने थोड़ी सी उनको भी समझाना पड़ेगा। उन्होंने काफी सारी चीजें गलत भी की। मुझे तो जितना भी आप दबाएंगे मैं उतना ही और आगे आके काम करूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ ये छोटे छोटे नौजवान हैं जिनका हमने बेड़ा उठाया हुआ, ये सारे जितने भी 15-20 नौजवान हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान से क्या पाकिस्तान के बाहर भी किसी यूनिवर्सिटी में अगर ये तालीम हासिल करने के लिए जाना चाहें, हम इनको पूरा सपोर्ट करेंगे। जिसमें अंग्रेजों के बच्चे या किसी बहुत अमीर कबीर वजीरों के बच्चे नहीं पढ़ते, हम इन बच्चों को उस यूनिवर्सिटियों में पढ़ाएंगे। ये सिर्फ पढ़ने वाले बने, ये हौसला करें, अपने माँ बाप की खिदमत करें, बड़ों का एहतराम करें और आस पड़ोस का जरूर ख्याल रखें। अगर दीनदार आदमी हैं, हम अगर अपनी 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, लेकिन हमारे अपने सारे मामला ठीक हैं, लेकिन हमें पता है कि एक जगह पे गरीब आदमी है, वो परेशान है, लेकिन हम फिर भी अपने मामला सीधे करते हैं। नमाज भी कबूल नहीं होती, वो रोजा भी कबूल नहीं होता, वो ज़कात भी कबूल नहीं होती अगर कोई मुसलमान आदमी भूखा घर पे सोता है या उसके बच्चे सोते हैं। इसीलिए सारे हमारे दीनी भाइयों से भी गुजारिश है, मिंबर पे बैठ के खास तौर पे ये नशे के खिलाफ भी बात करें। ये नशा एक लानत है। आप सिर्फ उन माओं से पूछें, उस बाप से पूछें जिसका बच्चे रोल मॉडल होते हैं। अगर उसको पता चलता है कि मेरा बच्चा जो है कोई सिगरेट पीता है या चरस पीता है, तो ये चीज उसके लिए एक डूब मरने का उसके लिए वो एक हो जाता है कि मैं काश मैं इससे मर जाता ये खबर सुनने से पहले। इसीलिए सारों को मिलकर नौजवानों की बेहतरी के लिए, नशे के खात्मे के लिए भी आप लोग काम करें। क्योंकि मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ, आप लोग यहाँ सारे रहते हैं, शफीक भाई हैं यहाँ पे, ये काफी सारी चीजें समझते हैं। ऊपर ये सस्ती रोटी की जो स्कीम है, इसमें मेरा बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था। इसको वसीम खान को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, इसने इस चीज का वर्क किया, इसने ये सारी चीजें समझाई कि इस तरह ये चीजें होती हैं। इसको अभी नीचे से लेके ये सारे ऊपर तक का ये भी पता है कि पेड़े का वजन कितना है, इसको ये भी पता है कि रोटी का वजन कितना है, ये कितने साइज की रोटी होती है। इस तरह कौन आदमी कर सकता है। मुझ पे तनकीद की गई कि बच्चों को मेरे सर पे बिठा दिया गया है, इस बच्चे के साथ आके बात तो करके देखे कोई कि ये किस तरह के काम कर रहा है, इसके आगे क्या क्या प्लानिंग है। असल काम तो वसीम खान करता है यहाँ पे। हम लोग तो सिर्फ बाहर बैठे हुए इसको अप्रिशिएट कर देते हैं, इसकी हौसला अफजाई कर देते हैं। मिनिस्टरों से जाके ये मिलता है, बाहर फलाई इदारों के लोगों से जाके ये मिलता है, हर किसी से जाके ये मिलता है। अभी हमारा इंशाल्लाह टरबाइन के बारे में भी लोगों ने थोड़ी सी सुस्ती है, अगर ये लोग साथ देते तो हम पूरे इलाके को बिजली भी फ्री दे देते। लेकिन यहाँ पे लोगों का कुछ है समझा, मुझे सियासत करनी, मुझे नहीं करनी सियासत में। आज इस बात का आप लोगों को बताता हूँ, ना मेरे पास टाइम है सियासत करने का। अगर कभी सियासत की तो नेशनल लेवल से आएंगे, इधर गाँव की जरूरत नहीं है हमको अगर सियासत करने की। हमको सियासत करना, हमारे पास टाइम है ना कुछ है, हमारा अपना काम करते हैं वहां पे, इसीलिए तो मेहनत मजदूरी करते हैं ताकि अपने इलाके के लोगों को हम सपोर्ट कर सके। इसीलिए सारे लोगों को चाहिए कि गरीब लोगों के साथ खड़े। ये आशिक बैठा हुआ है, इसके साथ प्रॉब्लम है, और दूसरे 2 भाई हमारे बैठे हैं, उनके साथ प्रॉब्लम है। और यहाँ पे हम लोग सस्ती रोटी का जब ये चीज शुरू करेंगे आप लोगों के लिए, सदका जारिया के लिए भी एक चीज है, किसी को एक नवाला खिलाना बहुत बड़ा अजर होता है। यहाँ पे हम एक बोर्ड भी लगा देंगे, जिसको अपना सदका कुछ करना हो कि 10 रोटियां किसी गरीब को खिला दें, वहां पे बोर्ड पे वो नंबर लिखा हुआ होगा, वो आए गरीब, लेकिन कोई उसको जजमेंट ना करे, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, वो उठा के वो रोटियां लेके जाए फ्री के अंदर, चाहे कोई जज ना करे कि ये बाद में बोले कि यार ये आदमी ऐसा था, 10 रोटियां उठा के ले गया। कोई नहीं, जो आए जितनी रोटियां जो सदका करना चाहे, खैरात उसमें देना चाहे, वो उसके ऊपर बोर्ड के ऊपर वो चीज लिखी होगी, वो अपने पैसे यहाँ पे जमा कराए उस हिसाब से, और रोटियां गरीब लोगों को फ्री दे दें। तो इंशाल्लाह ताला आप सब लोगों का साथ रहा तो हम आगे बहुत बड़े बड़े इंशाल्लाह काम करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत खुशी हुई जी, आप लोगों ने इतनी इज्जत दी। खुदा आप सबको खुश रखे। और इतने बस इतना ही था मेरा, बाकी वसीम था। बहुत बहुत शुक्रिया। मुश्किल दौर में जहां गरीब पसमानदा तबका पिसता चला जा रहा है, जिस तरह
दिन गुजर रहे हैं, पसमानदा तबका, सफ़ेद पोश तबका महरूम होता जा रहा है। तो इसी महरूमी को ख़त्म करने के लिए इस ट्रस्ट जुमाहान वेलफेयर ट्रस्ट जुबोड़ी का आगाज़ किया गया। और हमेशा तारीख में है कि जब भी नौजवान किसी मकसद पे इकट्ठे होते हैं तो वो दुनिया में और आखिरत में कामयाब होते हैं। इसी मकसद को सब ने मशाल राह बनाना है। और स्पेशल थैंक्स मैं करना चाह रहा हूँ खुरम भाई का कि जिन्होंने इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया, हमें एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि इस दौर में इस तरह का प्लेटफॉर्म बगैर किसी लालच के प्रोवाइड करना काफ़ी मुश्किल है। और खुरम भाई की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने सब के लिए इक्वल सोचा है। इसमें किसी कौम, ज़ात, नस्ल, रंग कोई भी इस ट्रस्ट में इस चीज़ पे फोकियत नहीं है। फोकियत है तो पसमानदगी पे है, सफ़ेद पोशी पे है। तो अब मैं इसी टीम के एक ऐसे मेंबर को बुलाना चाह रहा हूँ स्टेज पे कि जिसकी ज़िंदगी हमारे लिए मशाल राह है, जिन्होंने हमेशा इस ट्रस्ट के लिए, इस इलाके के लिए हमेशा कुर्बानी दी है। तो आपकी तालियों में मैं दावत देता हूँ अकमल रऊफ खान को कि वो स्टेज पे आए और कुछ अल्फाज हमारी आसमातों तक पहुँचाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। मैं आप सबका इंतहाई मशकूर हूँ। तो आप जुमाहान वेलफेयर ट्रस्ट के इस ओपनिंग सेरेमनी में अपना कीमती वक्त निकाल कर तशरीफ लाए और हम खुरम भाई का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने इस गांव के लिए, सबसे पहले अपने ख़ानदान के लिए और अपने गांव के लिए और पूरे इलाके के लिए, बल्कि पूरी यूनियन काउंसिल जुबोड़ी के लिए वो किरदार अदा किया है। और मैं ये कहूँगा इकबाल के ये शाहीन है, जिन्होंने, इकबाल ने जिन नौजवानों को शाहीन से तशबीह दी है, मैं कहता हूँ, मैं समझता हूँ कि खुरम भाई उन शाहीनों में से एक शाहीन है। अल्लाह पाक इनको लंबी ज़िंदगी, इज़्ज़त वाली ज़िंदगी, ईमान वाली, और इनकी ज़िंदगी में अल्लाह बरकत दे। और ऐसे नौजवान सदियों बाद पैदा होते हैं। और जब तक ये इस खुलूस नियत के साथ इस इलाके के लिए काम करते रहेंगे, हम इनके शाना बिशाना खड़े हैं और इनके बाजू बन के रहेंगे हमेशा। और अल्लाह ताला से दुआ है कि इनकी ज़िंदगी में मज़ीद बरकत दे और सबको ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमाए। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आप अपना कीमती टाइम निकाल कर आए, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आखिरु वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़ार। या अल्लाह तो आफियत वाला मामला है। या अल्लाह जो नए काम का आगाज़ हुआ, या अल्लाह खुरम खान को दिल की अता कराई, उसे वो बर्बाद करना। नए काम का आगाज़ किया है। या अल्लाह इस जवान के दिलों में अवाम का जज्बा है। या अल्लाह इस जज्बे को जारी व सारी फरमा। या अल्लाह इस जज्बे को जारी व सारी फरमा। या अल्लाह हमें हर नए काम करने की तौफीक अता फरमा, हर बुरे काम से बचा कर। या अल्लाह में इत्तिफाक इत्तेहाद नसीब फरमा। या अल्लाह हर किस्म के गुनाह से मैं बचा कर हर अच्छा काम करने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीब खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहम।
بس رات سے گزارش ہے کہ مٹھائی کھا کے جائیں. بالكمل بطل الصاوي وانا فاشت احلى المطاير تنتمي